नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों कहाँ पर हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, finally the Pakistanis had to do it. With the manner in which Kashmir was progressing, the manner in which Kashmir is progressing, the huge amount of investment that has come in Kashmir, कश्मीर में हर जगह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है. United Arab Emirates, they invested God knows, they are ready to invest God knows how many $1 billion, out of which I think $150 million have already come in, and so on and so forth. And these guys had to come in and kill a few tourists. And the rousing reception that Prime Minister Modi got where Saudi Arabia is concerned, you had fighter jets flying along with him. I don't think we saw anything like this ever before where the Middle East is concerned. They're rousing. So all these, if you see the history of all these accidents, it is always when some greater interest of the nation is at stake, it's going to happen, you have this kind of terror attacks to undermine the entire thing. And when any intelligence is looking into it, but whenever these great events happen, you always have a Pakistan slightly attacking and trying to disturb that kind of atmosphere prevailing. They sent in murderers. Let's not call them terrorists. Yes, yes. सीधी सादी बात है. आपने कातिलों को भेजा हिंदुस्तान में, जिन्होंने निहत्ते लोगों का कत्ल किया. पहले उनसे पूछा कि आप मुसलमान हैं, कि आप हिंदू हैं, और जाकर के जान करके और ऐसा जोर से बोला ताकि ये पूरे देश के अंदर खबर फैल जाए और हिंदू मुस्लिम तनाव हो जाए. मैं आपको बता देता हूं, हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. और जो रिकॉर्ड टूरिस्ट गए हैं अभी तक 2025 में, प्रदीप जी मैं आपको लिख के देता हूं, इसी पहलगाम में आप देखना 15 दिनों के बाद द रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड्स विल बी ब्रोकन. इतने ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे यहाँ पे, समझ गए? यस यस. तो ये जो पाकिस्तानी है ना, ये जो डुगडुगी बजाते रहते हैं, ये अपने गीदड़ों को, लक्कड़ बग्गों को, इतने गंदे से जो नाली के कीड़े हैं उनको भेज करके हमारे लोगों को मार देते हैं. कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, याद रख लो. और इस बार जो रिटेलिएशन होगी वो ऐसी होगी शहबाज शरीफ साहब कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको क्या हुआ है. ये याद रख लीजिएगा. दिस इज ऑफुल व्हाट हैज हैपेंड. नपुंसक और जो हिजड़े के लोग हैं जिनके कोई औकात नहीं, गंदगी. तो आई मीन इट्स टाइम. दिस इज नॉट समथिंग डन ऑन व्हिच व्हाट यू कॉल ब्रेवरी. कोई ब्रेवरी निहत्ते टूरिस्ट को मारना, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेवरी इज दिस? कौन सी ब्रेवरी है? You just come and shoot out at some places, and then you run into some forest and hide yourself. Anyway, these things. Anyway, as you said, we saw the Balakot strike, we saw the surgical strikes, and we know what's coming, and they also know what's coming. That's right. Yes, and Pakistan has drawn it upon itself. बिल्कुल. Now they'll say that this इन्होंने ही किया, जैसे false flag operation. False. All kind of things happen. But greater things happening for the country. These things are definitely tourism. जिस प्रकार से बढ़ा हुआ था कश्मीर, where even अभी भी है सर, अभी भी. The CM himself coming out and saying that what great things have been achieved in this. We cannot negate that things have been achieved. Infrastructures have developed. Modern facilities have come. Kashmir has come. People are moving out. People are moving everywhere. People are enjoying the facilities, and all kinds of infrastructures available to them. Which is not available across the border on the same Kashmir, the Pakistan occupied Kashmir. So things were happening where these things concerned, and you cannot say it's a blot on Article 370. It's a great achievement, but some people try to dampen the spirit by these stray incidents. It's idiotic. Like this. It's idiotic, sir. Yes. It's idiotic. I'm very surprised it has taken them so long. Very frankly, I thought that these guys would do it earlier. Yes. मुझे तो लगता था पहले करेंगे ये. बड़ी देर के बाद करिए. Which is a loss. And in the meantime, we'll also talk about how Vidarbha and Marathwada are facing a huge drought problem, and Mr. Devendra Fadnavis has promised a solution almost instantly. And apart from that, as Pradeep ji mentioned, Mr. Narendra Modi in Saudi Arabia, और Saudi Arabia के अंदर जो उनको वेलकम दी गई है, माशाल्लाह अभी तक और किसी को मुझे याद नहीं है कि दी गई हो. ट्रम्प साहब भी जब गए थे सऊदी अरेबिया में, तब भी उनको कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था, विद अबाउट 6 F-15 ईगल्स फ्लाइंग अलोंग विद द
इंडियन एयरफोर्स वन। बिल्कुल जी। सो I think it's a great event. I think it's a great event and lovely and I mean, over the week, a lot of good things are happening. You're the US Vice President coming out here. JD Vance साहब अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, जहाँ. Yes, and Trump himself coming for the bigger, the quadruple meeting out here, all the 4 countries. He's agreed to his presence in India. I mean, all these things happening, and that's pained some people across the border. But it's time to teach them a lesson. It's time. सर ऐसा है कि प्रॉब्लम क्या है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो मतलब पाकिस्तान है, वी टेक देम टू सीरियसली, सीधी सादी बात है। राइटफुली स्पीकिंग वी शुड नॉट इवन बी टेकिंग देम सीरियसली, वी शुड डू व्हाट वी यूजुअली डू टू अ कॉकरोच। पाकिस्तान इज अ कॉकरोच, लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड दे शुड बी क्रश्ड। मतलब आप किसी देश के अंदर किलर्स को भेज करके, कातिलों को भेज करके निहत्थे लोगों के को मरवाएंगे और आप ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको कुछ होगा नहीं। आगे देखो क्या क्या होता है। एनीवे, I hope to God some sense prevails. I mean, here they understand as that there's no God. They don't understand the language of God. That's right. They understand only one language. I think Prime Minister Modi knows what to do. Exactly. Everybody knows what to do, sir. Let's be very clear. Even the Congress. आप इंदिरा जी का रिकॉर्ड देखिए, आप राजीव गांधी जी का रिकॉर्ड देखिए, सीधी सादी बात है। It's only during Dr. Manmohan Singh's time that things became kind of balanced in a different manner. Indira ji did not hesitate. Not for she sent the army into Bangladesh, into what is now Bangladesh. Yes. And even Rajiv Gandhi, when General Sundarji was the chief of army staff, as far as the Chinese were concerned, taught the Chinese such a lesson that the Chinese were begging for mercy. तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है वो ज़्यादातर कंसिस्टेंट रही है। आई होप दैट कंसिस्टेंसी रिमेन्स एंड आई होप द रिटेलिएशन as far as these sponsors of these guys are concerned across the border in Pakistan will be such that the Pakistanis will think 10,000 times before doing any such thing again. Anyway, let's go straight across to our guests. I think we've got Sameer Bhagre Saab from the BJP. Bhagre Saab, namaskar. Namaskar, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Namaskar, namaskar. Sushil Vyas Saab, namaskar. Great to see you, sir. Thank you. Sushil Vyas ji, namaskar. और भरत सोनी साहब, नमस्कार नमस्कार। लवली टू सी यू एज ऑलवेज। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार भरत सोनी साहब, ऑलवेज लवली टू सी यू। भरत सोनी साहब, पहले आप। भरत सोनी साहब, ये कश्मीर में जो हमला हुआ है, आई थिंक इट्स द मोस्ट condemnable, awful, pathetic, pitiable thing that could have happened. Killing innocent tourists. I mean, ये हो क्या रहा है? What do they think? That there will be no retaliation from this side? Bharat Soni sir, please go ahead. There will be, sir, as far as our security forces are concerned, Yes. and our army is concerned, Yes. we will reply back in the language they understand, and our military, our security forces are capable of it, and they have shown it in past also, and they'll show it this time also. We all stand in together with our security forces, and we condemn the incidents, and the innocent people who were tourists only with they have been sacrificed only with the reason that they want to send a message that the tourism should not happen here, the tourists should not come here. That is the idea. Economically, the Kashmir should not stand up. That is the idea behind that. That's and right. we condemn that, sir, in the strongest of language possible. We condemn that entire thing. But this prakar se, we can call it stray incidents and incident targeting innocent people who got nothing to do with any kind of politics. Bharat Soni Sahab, this is not only an attack on the innocents, this is an attack on India. This is actually, when you target a poor, honest person traveling, a tourist or whatever it is, you're not attacking the single man in isolation. You're attacking the heart of India. Don't you think it's a very dastardly attack? It cannot be accepted under any terms. Sorry, sir. Pradeep ji, I did not wanted to bring a politics into this or the political statement into this. We have seen जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर 400 किलो आरडीएक्स आया था, और इतने बड़े कंटिंजेंट को जब मूव करते हैं तो उनको व्हीकल्स और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, और उसके कारण उतने हमारे जवान 40 जवान शहीद हुए थे। उसका आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्या मैसेज देते हैं हम लोग? अगर हम लोग उसका मैसेज और आज तक अगर उसके बारे में हम लोग छानबीन नहीं कर पाए,
और हु आर द कल्प्रिट्स, उसके जिम्मेवार कौन है, ये अगर हम लोग नहीं दिखा पाए तो ये, लेकिन ये बात मैं ये नहीं कहना चाहता आज के वक्त में, आज के दिन हमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे मिलिट्री के साथ, हमारे देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके साथ खड़ा रह के उसको किस प्रकार से रिटेलिएट कर सके, उसके ऊपर का दिन है। तो मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रदीप जी, यू हैव दैट आर्ट ऑफ पोकिंग। जी, लेकिन भरत सोनी साहब, चलिए ये तो बात हो गई। मैं जाता हूं सीधा समीर भागरे साहब के पास। समीर भागरे साहब, मेरा ये कहना है, व्हाई डू वी कॉल देम टेररिस्ट? हम इनको टेररिस्ट बुलाते क्यों हैं? दे आर ब्लडी पिग्स, दे आर जैकल्स, हाइनास, वल्चर्स। कौन है ये लोग? मतलब निहत्थे लोगों का कत्ल कर रहे हैं आप। दे आर मर्डरर्स। व्हाई डू वी इवन कॉल देम टेररिस्ट? एंड दे आर पाकिस्तानी। सीधी सादी बात है। आई होप दिस टाइम समीर भागरे साहब, जैसा अमित शाह साहब ने कहा है कि इस बार रिटेलिएशन जो होगी, उसके बाद ये जो जिसने भी इनको भेजा 10,000 बार सोचेगा। समीर भागरे साहब बोलिए। देखिए सर, पहले तो मतलब आपने जो जो वर्ड्स यूज किए उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और उससे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किस तरीके के लोग हैं जो इनोसेंट टेररिस्ट हो या इनोसेंट कश्मीरीज हो, इनके ऊपर निहत्थे लोगों पे वार कर रहे हैं। अरे अगर आप में हिम्मत है तो हमारे मिलिट्री के साथ आके सामने लड़िए ना। अगर आप इतने बहादुर है तो आके लड़िए। लेकिन ये कायर लोग हैं, ये लोगों को सर जहां इनकी जगह है वहां पर जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जैसा मतलब एयर स्ट्राइक किया गया था, उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये आप बिल्कुल, मैं मतलब भाजपा की तरफ से बोलना चाहूंगा कि एक भी सिटीजन जो हमारा है, वो चाहे वो कश्मीरी हो चाहे कोई टूरिस्ट हो, उसकी जान हमारे लिए उतनी कीमती है। और ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी ड्यूटी है देश के प्रति कि इन जो मतलब जल्लाद जो लोग वहां से आए हुए हैं उनको उनके जहन्नुम में पहुंचाना जल्द से जल्द जरूरी है। और कांग्रेस के मेरे मित्र जो बोलते बोलते बोल गए कि मैं पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने पूरी बात बोल दी। अब बताइए कि 10 साल में सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक इनके रेजिम में हुए थे। मैं भी ये बोलना नहीं चाहता कि इनके रेजिम में मुंबई का अटैक हुआ था, जिसके तहव्वुर राणा को अभी हमने लाया है। तो कैसा ये जो राजनीति है, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान पूरे दुनिया में खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं ये इनकी सिस्टम जो है ये सब चीजों को पनपने दे रही है। अभी वक्फ कानून के नाम पे पैलेस्टाइन के झंडे लहराए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये किस तरीके की राजनीति है? भाई राजनीति आप कीजिए, लेकिन इस तरह की राजनीति मत कीजिए कि देश की जो सुरक्षा है और देश का जो स्वाभिमान है और देश के निहत्थे लोग हैं, देश के टूरिस्ट है, उसके ऊपर कोई अटैक करे। देखिए राजू जी, आपको अभी मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में जो पाकिस्तान के कोई नए आर्मी चीफ आए, उन्होंने इतना भाषण दिया जो काफी जगह वायरल हुआ, ऐसा मैंने सुना और मैंने खुद देखे उसके क्लिप्स। उन्होंने क्लियर कहा है कि हम तो 2 नेशन थियरी मानते हैं, 2 नेशन थियरी पे, और हिंदू हमसे अलग है। तो आज जो टूरिस्ट को सिर्फ उन्होंने अपना धर्म पूछ के गोली मारी, ऐसा मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा है। मैंने पूरा वाकया नहीं देखा है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर ये होने वाला है तो ये देखिए कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके की what we could see is the vice president of US coming to India. It's a great event relations. We saw today जिस प्रकार से स्वागत मोदी साहब का सऊदी अरेबिया में हुआ, that was a great, पूरे मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट उनको वेलकम करने के लिए विद इन द सऊदी बॉर्डर वहां पर लेके जड्डा लेके लैंड उनको कराया, और जो रिसेप्शन राउजिंग। तो जब भी ऐसे इंसिडेंट होता है जो देश को अभिमानित करने वाला हो, you know, at that particular time there's always a chance of these kind of slimy attacks to dampen the entire atmosphere. जो atmosphere बन रहा है उसको dampen करने के लिए, तो कहीं ना कहीं I think we should have also thought about the attempt of these kind of attacks. Bakri साहब, सर देखिए, our security forces are always on alert and you can see that there might have been thousands of attempts to attack people, but 999 were foiled. So sometimes terrorists succeed in doing some damage to our tourists or to the ecosystem there. But let me tell you that not only the situation is improving in India and Pakistan is getting jealous, but there is a problem of plenty for Pakistan also. Now they are actually like a failed state. Pakistan is a failed nation. आप देखिए उनके बलूचिस्तान में कोई ट्रेन हाईजैक हो जाती है, Pakistan occupied Kashmir mein there are now rebellion. So Pakistan is a totally frustrated state and they will try to do these attacks. We will try that 100% times they will not succeed, but still if they succeed like this what they have done, we will give that
रिस्पॉन्स इन सच अ मैनर दैट उनको मतलब आने वाले उनकी लेकिन बागरे पीढ़ियां भी साहब याद रखे। एक छोटी सी चीज जो अभी अभी आपने मेंशन करा, जो जनाब अभी अभी आर्मी चीफ बने पाकिस्तानी आर्मी के, ही हैड मोर और लेस गिवन एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज टू कम। उन्होंने तो अपनी स्पीच में बोला था ना, एक तो कश्मीर के बारे में बोला था और दूसरा ये बोला था कि भाई हमारी तो टू नेशन थ्योरी है, हिंदूज आर नॉट पार्ट ऑफ अस। कहने का मतलब ये हुआ दिस वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी चीफ सेड, बिकॉज पहलगाम में वो मेडो करके रेस्टोरेंट है, द मेडो, वहां पर बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। वहां पर ये लोग बाहर बैठे हुए थे, कोई चाय पी रहा था, कोई दे वर हैविंग स्नैक्स एटसेट्रा। दीस फेलोज कम ओवर देयर एंड एक बंदा बोलता है कि ये मुस्लिम नहीं दिखता है, उड़ा दिया उसको। वो एक से पूछा तू हिंदू है कि मुस्लिम है? हिंदू है, उड़ा दिया। दैट्स व्हाट दे वर डूइंग। मतलब पूरे देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम की टेंशन भी फैल जाए, ये इनका मकसद था बागरे साहब। सर ये इनका मकसद भी है, और आप भी जो राजनीति जिस तरीके की आप हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टी करना चाह रही है, वो भी तो यही चाह रहे हैं सर। बंगाल में जो स्टेट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, यानी टीएमसी की गवर्नमेंट है और वो शांत बैठी है, देख रही है लोगों को कि ना पुलिस, वहां पर सीआरपीएफ भेजना पड़ रहा है, वहां आर्मी के लोग भेजने पड़ रहे हैं। तो ये अपोजिशन की जो राजनीति है वो इतने नीचे स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं, अपने वोट बैंक को बचाते बचाते ये देश के साथ सर इतना बड़ा धोखा करने की तैयारी कर रहे हैं कि आप मैं बता नहीं सकता कि बंगाल में अभी हम लोगों की रिपोर्ट आई है, इतने भयानक तरीके से हिंदुओं को खदेड़ के वहां से भेजा है। और ममता बनर्जी की जो सरकार है वो तो वहां बॉर्डर में फेंसिंग भी नहीं करने दे रही है, कुछ 400 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, अमित भाई ने पूरे पब्लिकली कहा है। तो ये चाहते हैं कि ये घुसपैठी इंडिया में आए, देयर शुड बी अ डेमोग्राफिक चेंज एंड देन द पार्टीज वुड लाइक टू रूल। तो मैं ये चलता कि भाई आप सरकार बनाने के चक्कर में आप देश को किस तरीके से किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो ये सबने सोचना चाहिए सर। इट इज नॉट अबाउट राइट। लेट मी गो टू सुशील व्यास साहब। सुशील व्यास साहब, जैसे अभी अभी प्रदीप जी ने बताया, मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में हिज ओन प्लेन, इंडियन एयरफोर्स वन, that was accompanied by F-15 Eagles of the Saudi Arabian Air Force। ये पहले मैंने कभी देखा नहीं है, वेरी फ्रैंकली, किसी भी हेड ऑफ स्टेट को इस किस्म का। एंड डू रिमेंबर, मोदी जी इज नॉट द हेड ऑफ स्टेट, ही इज जस्ट द प्राइम मिनिस्टर। आवर हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट। ये प्रोटोकॉल ज्यादातर हेड ऑफ स्टेट के लिए रिजर्व होता है। उसके अलावा the kind of success that he has had with regard to Saudi Arabia and with all the other Arab countries, and here we must point out, United Arab Emirates is investing God knows how many $billion in the Kashmir Valley। तो सर ये सब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उससे हजम नहीं हो रहा है। सो दे आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। अब आप बताइए सुशील व्यास साहब। मैं आपकी बातों को भी सुन रहा था, समीर जी की बातों को भी सुन रहा था। पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से भारत को परेशान करने की कोशिश करता है, वो कामयाब कभी नहीं हो सकता, जैसे आप कह रहे थे, समीर जी भी कह रहे थे। अब निहत्थे पर्यटकों पे और या कश्मीर के भी हमारे भारतवासियों को अगर कोई इस तरह से कोई उड़ाता है या खत्म करता है, तो वो इंसानियत तो नहीं कही जा सकती, और वो राजनीतिक तौर पे या राजनयिक तौर पे भी, जिसको आप डिप्लोमेसी कहते हैं, उस तरीके से भी कोई उचित कदम नहीं है। कोई देश अगर विदेश की धरती में जाके अपने पर इस तरह से दरिंदों को भेज करके कोई अमानवीय कृत्य करवाता है, तो उसको कोई भी समर्थन नहीं दिया जा सकता, और इसका जितने से मजबूती के साथ रिटेलिएशन होना चाहिए भारत की सरकार और हमारे सुरक्षा दल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और उनको नाको चने दबाएंगे। और ये जो पाकिस्तान कर रहा है उसको हम कहते हैं बचकाना हरकत, जिसको हम कह सकते हैं। आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा, मैं चूंकि किसी दल का एक प्रवक्ता हूं, तो उस शब्दों को उतने स्ट्रॉन्ग वर्ड सार्वजनिक रूप से कहूंगा तो कल विवाद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान वही डिजर्व करता है। मैं आपकी बात को अपने आप को जोड़ते हुए कहता हूं, पाकिस्तान उसी बात को डिजर्व करता है, जिन ख्यालत को, जिन विचारों को, जिन गंभीर या कहते हैं मजबूत इरादों को आपने जाहिर किया, मैं अपने आप को उससे जोड़ता हूं। व्यास जी, 26/11 we saw the whole country wanted a retaliation which never happened, and probably that's why the people have elected Modi government the third time। जिस प्रकार से convincing तरीके से आए। Now Modi साहब showed it by the way of surgical strike and Balakot strike that आप यहाँ कुछ करोगे, will enter and hit you in the base। तो people want this because लोग इस सरकार को इसलिए चुना है कि they want a sort of self respect and security both together। व्यास साहब,
Do you think this government is going to fulfill that obligation? नामदेव जी, ये विल पावर का सवाल है। सवाल ये उठता है कि आप देश के ऊपर आक्रमण करने वालों को, देश के प्रति जो दरिंदगी दिखा रहे हैं, उन लोगों के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहते हैं। ये देश की दिशा तय करती है उनके प्रशासकों के, शासकों को द्वारा जो उनका विल पावर है। जैसे अभी आप बजाज जी कह रहे थे अमित शाह जी के बारे में, उन्होंने क्या बयान दिया, उसी तरह से मोदी जी के तमाम जिनका जिक्र आपने किया, सर्जिकल स्टाइल, बाल कोट वगैरह, तो ये कर्तव्य बन जाता है जो शासन में है, और वो दल चाहे जो भी हो। दुर्भाग्य से भूतकाल में क्या हुआ, मैं उस पर जाकर के विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आज हमारे देश के किसी नागरिक पे या निहत्थे व्यक्ति पे किसी ने हमला करके उसकी जान ली है, तो उसको पूरे देशवासियों को इकट्ठा होकर के एक राय से, एक आवाज से उसका मुकाबला करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उनको निस्ता नाबूद करना चाहिए। आज भी अगर हम लोग पुराना गिनाने लग जाएंगे, उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसा हुआ, तो मैं समझता हूँ ये देश की एकता के साथ ठीक नहीं होगा, देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। लेकिन भरत सोनी साहब, भूतकाल के अंदर क्या हुआ, मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं। आई एम सो सॉरी सर। 1971 में इंदिरा जी डिड नॉट हेजिटेट। इंदिरा जी ने फौज भेज दी अंदर, ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश बना दिया। और 1985-86 में मुझको याद है सर, आई वाज इन दिल्ली, राजीव गांधी गेव द गो हेड टू लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी का, जो करना करो, एज फार एज द चाइनीज आर कंसर्न, वी विल नॉट टॉलरेट एनी इंट्रूजन ओवर हियर। और जिस प्रकार इंडियन आर्मी ने, दे अलाउड द चाइनीज टू कम इन। अच्छा, आप इधर आ रहे हैं, दे वुड कम इन से 10 किलोमीटर्स इन इंडियन टेरिटरी, द इंडियन आर्मी वुड गो 20 किलोमीटर्स इनटू चाइनीज टेरिटरी। फाइनली द चाइनीज वर बेगिंग फॉर मर्सी एंड दे वेंट बैक। तो मेरा ये कहना है सर, ये कांग्रेस का इतिहास है। एक और चीज आपको बताता हूं, छोटी सी बात है, जो लोगों को लोग भूल जाते हैं अक्सर, मैं याद दिलाना चाहता हूं। व्यास साहब आप भी सुने, बागरे साहब आप भी सुने। 1967, just 5 years after the 1962 war, we got a bloody nose from the Chinese. Chinese ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी थी। 1967, मेजर जनरल शागत सिंह, सर, नथुला पास एंड चोला पास, we destroyed the Chinese over there, threw them back। 350 चाइनीज सोल्जर्स को नथुला पास में मारा। हिम्मत नहीं थी उनको अंदर आने की। आज भी नथुला पास का जो वो वाला इलाका है, वो भी इंडियन कंट्रोल में है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भरत सोनी साहब, ये आपका इतिहास है ना, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे। सो आई थिंक यू शुड बी मोर एग्रेसिव एंड मोर मिलिटेंट एज फार एज दीस फेलोज आर कंसर्न्ड। व्हाट डू यू थिंक भरत सोनी साहब? Deeds, not by words. We have not to give the, हमें खोखले स्लोगन्स नहीं देने चाहिए, सिर्फ हमें जाके करना चाहिए। हम कितने साल से हम लोग सुन रहे हैं कि चाइना को लाल आंख दिखाने वाले हैं। वो पता नहीं चाइना को लाल आंख कब दिखाएंगे, और वो जो 40 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं, उसके ऊपर हम लोग कब अंदर घुस जाएंगे और उनको मार भगाएंगे। ये हम लोग हमारे देश के अभी की जो नेतागिरी है, उनसे हम लोग चाहते हैं। और हमारे पास तो इतने काबिल और सफल होम मिनिस्टर है, उनके होते हुए अगर हम लोग चाइना को नहीं भगा सकते हैं, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होना चाहिए उसके ऊपर। भरत सोनी साहब, कांग्रेस का जो एजेंडा है, किस प्रकार से आप देखते हो कांग्रेस? Because what we are trying to understand is your leadership should inspire a kind of commitment towards the nation. तो बीजेपी का कहना है, राहुल जी जब भी जाते हैं देश के बाहर यही बोलते हैं, देश में ये तकलीफ है, देश में वो तकलीफ है, देश में इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन में minorities are living. तो why this kind of a rant outside the country? Can't we have it within the country? बहुत जरूरी है इस देश में। बीजेपी का एक आरोप है राहुल जी पर कि राहुल गांधी जब भी देश के बाहर जाता है, देश का बदनामी वहां शुरू कर देता है। भरत सोनी साहब। प्रदीप जी, मैं आपके आज्ञा चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी फॉरेन सॉइल पे क्या देखते हैं ना, ये मैं बताना चाहता हूं कि कौन से देश में पैदा हो गया था, कोई पाप किया था पुराने जमाने में। शंघाई वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं सर? शंघाई, बिल्कुल सर। जी, शंघाई में बोला था। शंघाई का भी बोलता हूँ, दक्षिण कोरिया का भी बोलता हूँ, जर्मनी का भी बोलता हूँ, सियोल में भी बोला था, कनाडा में भी बोला था, कनाडा में भी बोला, अमेरिका, दोहा, कनाडा और कैलिफोर्निया, ये सभी जगह पे अगर हमारे प्रधानमंत्री जाकर बोलेंगे तो कोई नहीं, यानी आप करो तो वो रासलीला है, लेकिन हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला है। और राहुल जी ने कौन सी बात गलत कही? राहुल जी ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज, वोटर फ्रॉड हुआ है। हाँ,
वोटिंग नंबर्स जस्ट डोंट एड अप। सर, ये राहुल जी ने पार्लियामेंट के पटल पे भी कहा है, बाहर भी कहा है, सोशल मीडिया पे भी कहा है, और बीजेपी पार्टी क्यों स्पोक्स पर्सन बनी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? इलेक्शन में वो कमीशन ऑफ इंडिया को बोलने दीजिए ना कि भाई 5, 5.5 से 7.5 के बीच में 65 लाख वोट ऐड हुए, एक वोटर को 3 मिनट लगता है, तो क्या वहां पर रात को सुबह 2 बजे तक लाइन लगी थी? सर, अगर 65 लाख वोट ऐड होते हैं 5.5 से 7.5 के बीच में, तो वहां पर इतना बनाओ, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, ये राहुल जी बोले हैं। और मैं मेरे नेता राहुल जी की बातों का समर्थन करता हूं कि जब वीडियोग्राफी मांगी गई तो वीडियोग्राफी के लिए इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, और मना करने के साथ क्या किया उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया कि आप वीडियोग्राफी नहीं मान सकते हो। तो सर, डिफेमिंग ऑफ कंट्री ऑन फॉरेन सॉइल, ये तो रंजीत कासले जी अभी एक पकड़े गए, उन्होंने भी कहा है, उनको आपने तुरंत पुलिस से निष्कासित कर दिया। तो सर, ये सर देखिए, डेमोक्रेसी ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है जिसका सब does it really matter? One second. Bharat Soni Saab, does it really matter? Whether Rahul Gandhi says it over here, or he says it in America, or he says it in Reykjavik, or he says it in Antarctica, the whole world is connected with the internet. जहां से भी बोले उसमें क्या फर्क क्या पड़ रहा है? आप बोलें सर, बोलिए सर। तो इसीलिए सर देखिए, रूल 93 क्या बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज इज मैंडेटरी। सर, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो? और सर, उसका जवाब ईसीआई को देने दीजिए ना। Why BJP and its spokesperson Sambit Patra are coming and defending the ECI? Are they spokesperson for ECI or BJP party? So that is what we have to say. We stand by our leader Rahul Gandhi ji, what he has said in Parliament. Here I would like to ask you a question, sir. I would like to ask you a question coming back to what has happened in Kashmir. Sir. I'm sure Sushil Vyas ji wants to say something over here. I'm coming to you, sir. I saw you raise your hand. मैं आ रहा हूं आपके पास, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। सर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो हुआ है, don't you think it is time we retaliated in a way that a national pride should be satisfied, the deaths of these people should be avenged, and the perpetrators should think 10,000 times before trying to do this again? Bharat Soni Saab. Sir, I didn't get that question, sir. Sir, Bharat Soni Saab, can you hear me now? Yes, sir. Don't you think the Congress, as represented by you over here in this program, don't you think that you should stand with the Prime Minister and with our armed forces and everybody else to retaliate against Pakistan in such a way that they should think 10,000 times before planning such a thing again? What do you think? Rajiv ji, I have already said in my opening debate remarks, or only I have said it. We stand with our Prime Minister. See, when it comes to the Pakistan or any other country who tries to attack us and tries to, show us of the lesser god, they have to be retaliated. They have to be given that in the language they understand. We stand by that. We stand by our security forces. I have said in the beginning only. Right, sir. So, व्यास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर, बोलिए। पहले तो बहुत अच्छा लगा सुखद के भरत भाई ने कहा कि वी स्टैंड विद दी आवर प्राइम मिनिस्टर। सो ये देश की एकता दिखाती है, कि मुझे आशा करता हूं कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व भी यही भाषा कहेंगे जो भरत भाई उनके प्रवक्ता आज के आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से वो बता रहे थे आंकड़े वगैरह, जहां तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के समय 1,10,000 के करीब टोटल बूथ है महाराष्ट्र में, और 5.5 से 7.5। अब उनके आंकड़ों को ही मैं ले लूं, 3 मिनट में 1 वोट होता है, तो एक घंटे में 20 वोट एक जगह एक बूथ पे होगा, तो 2 घंटे में 40 वोट। तो 1,10,000 बूथ पे 2 घंटे में कितने वोट गिरने चाहिए? अगर 20 वोट 40 वोट 2 घंटे में 1 बूथ पे गिर जाए तो अब वो बात तो 2 बजे 3 बजे वाले मामला खत्म हुआ। तीसरी चीज, अगर आप इतने गंभीर हैं चुनाव के प्रक्रिया को लेकर के, तो मैं जानना चाहता हूं कि 288 महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र से कितने चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की गई इन सो कॉल्ड, इनके शब्दों में, घपलों के खिलाफ।
क्योंकि उनको अधिकार था फाइल करने का। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हार्डली एनी 2 or 3 इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड टू चैलेंज द इलेक्शंस आउटकम। अब तीसरी चीज, इनके इलेक्शन एजेंट जो पोलिंग एजेंट जो है, जो फॉर्म 17C शायद लेके आए होंगे, जो उनका अधिकार है और लाना चाहिए। अगर वो पोलिंग एजेंट बन के जाते हैं तो ये उनका कर्तव्य है। वो इसीलिए जाते हैं कि पहले वोट से लेकर अंतिम वोट पड़ने तक, और जब तक वो वहां का ईवीएम मशीन सील नहीं हो जाता तब तक वहां रुके, और वहां का जो पोलिंग इंचार्ज है, पोलिंग बूथ का ऑफिसर, उससे 17C साइन करवा के लेके आए। 17C वो है फॉर्म जिसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो उस बूथ में गिरे हैं उसका सर्टिफिकेट वहां का जो बूथ ऑफिसर है वो हर पोलिंग एजेंट को देता है। और जब आप काउंटिंग में जाते हैं तो उससे कंपेयर करते हैं, जब वो ईवीएम खुलता है, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स उस बूथ में इतने गिरे और काउंटिंग के समय कितने गिने गए। तो अब कहाँ, बताइए मुझे, 288 में से कितने 17C फॉर्म मिसमैच हुए काउंटिंग के टाइम? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? कुछ भी हवा में बोल देना, कुछ भी आरोप लगा देना प्रक्रिया के ऊपर। अगर थी तो आपको संविधान अधिकार देता है, भारत का संविधान अधिकार देता है, न्यायिक प्रक्रिया आपको अधिकार देती है, चुनावी प्रक्रिया आपको अधिकार देती है कि आप इसको चुनौती उस समय देते, ग्राउंड जीरो पे देते। भारत उच्च न्यायालय के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन पिटीशन के माध्यम से दे। आप बताइए क्यों नहीं किया आपने? खाली, और फिर अगर यही बात थी, वही चुनाव की प्रक्रिया मई में भी थी, जहां लोकसभा के चुनाव में 48 मई से 31 लोग आपके चुन के आए, उस समय ये बातें क्यों नहीं आई? क्या उस समय ये ईवीएम मशीनें नहीं थी? क्या उस समय ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत के जो एक चुनाव की प्रक्रिया है, जो एक बहुत मजबूत तरीके से देश की सेवा कर रही है, उसको आप कटघरे में खड़ा करके पूरे विश्व के सामने क्या कहना चाहते, क्या बताना चाहते? तो अगर आपने विदेश की धरती पे जाके ये बातें कही तो ये भी कहिए कि मेरी पार्टी के मेरे कार्यकर्ता जो पोलिंग एजेंट बन के गए, जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, वो भूल गए कि जब वोटर की कम ज्यादा हो रहे थे, जब वहाँ वोटिंग मशीन 5:30-6 बजे के बाद भी वोटिंग रात को चल रही थी, तब हम उसका विरोध करने वहां नहीं पहुंचे, और उस समय तो हम अपने घर में इसी कमरों में बैठे रहे। और अब चूंकि हम हार गए हैं, तब आकर के जनता के बीच में एक ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, जिस हमने अप्रैल के लोकसभा चुनाव में फैलाया कि संविधान खतरे में है। उसी तरह से हारने के बाद आप एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं कि ये चुनाव हमारी जो महाराष्ट्र की युति है, उसने, इन तीनों दलों ने घपला करके जीती है, और वो घपला हम बताने के लिए असमर्थ है कि किस तरह से घपला। भाई आप आरोप लगाते हो तो ये भी तो बताओ कि किस तरह से आपने गड़बड़ियां हुई है। उन गड़बड़ियों को विस्तृत जानकारी तो देंगे कि नहीं देंगे? दीजिए, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। Vyas ji, let me go across to Sameer Bhagre sahab and I'll come back to Bharat Soni. I just want to ask the 65 lakh है ना sir, you know, Vyas ji, 65 lakh voters. Sir, I'm coming to that, Pradeep ji. No, I'm just asking Vyas ji because he's got a good, no, he's got a nice study. एक मिनट, उसका स्टडी व्यास जी का अच्छा है। 65 लाख राहुल गांधी जी ने हाल ही में फिर वो आरोप लगाया है, 65 लाख within 5:30 to 7:30. व्यास जी, you think it is possible? आपने कहा 1 लाख बूथ है तो 1,10,000. Yes. प्रदीप जी, मुझे पूछने दीजिए ना। प्रदीप जी, मैं उनको वही पूछता हूँ सारी बातें। If he has worked in the party, वोट तो खाली मुंबई शहर में है। 10,117 बूथ तो खाली मुंबई सिटी में है। पूछिए भरत सोनी साहब, पूछ सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सुशील जी, मैं उन्होंने मेरी जो बातें मैंने कही उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये इलेक्शन की प्रक्रिया समझाने लगे। सर, मैं 1971 से एक्टिव राजनीति में हूं, और मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूं, इलेक्शन एजेंट भी लोकसभा के कैंडिडेट का रहा हूं, तो मुझे मालूम है कितने बूथ होते और कैसे वोट पड़ते। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि शाम को 5 बजे इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा दिया। उस डेटा देने के बाद 5:30 से 7:30 के बीच में 65 लाख वोट पड़े। तो अगर 5:30 से 7:30 के बीच में अगर सब सेंटर पे इतनी बड़ी बड़ी भीड़ थी, तो अगर 3 मिनट का हम लोग टाइम ले एक वोट पढ़ने को, तो रात को 2 बजे तक वो 65 लाख वोट गिरने चाहिए थे। ऐसी लाइन कहीं देखी नहीं। और मैं पूरी मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और 288 में से 235 सीट जीती है महायुति। सर, तो आप उसके ऊपर बात करिए। और सुशील जी, इलेक्शन कमीशन का, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप
प्रवक्ता मत बनिए। तो एक आप- छोटी सी आप बात सर पार्टी के सर लिए सर रहिए। सर भरत सोनी साहब, आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैं एक जो बात- सर एक मिनट सर, अभी मैंने अरे व्यास जी खत्म एक नहीं किया। मिनट, मे आई आस्क अभी मैंने क्वेश्चन खत्म नहीं किया सर। सर, मे आई बी परमिटेड अगर सर बिना राजू जी, मतलब सर का हमला वीडियोग्राफी होगा तो उसका देने बचाव के करूंगा। लिए, वीडियोग्राफी देने के लिए क्यों मना किया? वीडियोग्राफी दिलवाइए ना आप सुशील जी, मैं आपके ऑफिस में कल सुबह आके बैठ जाता हूँ। आप वीडियोग्राफी दिलाइए। इलेक्शन कमीशन मेरे अंडर में नहीं है। सुशील तो व्यास आप- जी, आप फिर may इलेक्शन I कमीशन ask- के क्यों प्रवक्ता बन रहे हो? भरत सोनी साहब, मे आई बजाय आस्क कुछ ए कह रहे हैं, क्वेश्चन। उनका सुन लेते हैं। भरत सोनी साहब, मे आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज। भरत सोनी साहब, कैन यू हियर मी? सर भरत सोनी साहब, जो 5:30 बजे के बाद जो डेटा आया इलेक्शन कमीशन का, was that data specific with regard to votes being polled after 5:30, or was yes, it the that is what I am telling sir. sir please may I finish, or was it the cumulative data which had not been released from 12 noon? I would like to ask you. That's what election commission says कि वो 12:30 बजे के बाद दोपहर में जो डेटा एक्यूमुलेट हुआ और टैली हुआ, वो सारा डेटा रिलीज हुआ। ये थोड़ी है कि इतने वोट 5:30 के बाद बढ़े। अब आप बोलिए सर, बोलिए। Rajiv ji, I'll come back to, I'm examining same line. Sir, जी। at 5:30 a data was declared by the Election Commission of India. हाँ, महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन के अंदर जो महाराष्ट्र चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उसने जो डेटा डिक्लेयर किया 5:30 बजे एक्स डेटा डिक्लेयर किया। उस एक्स डेटा के बाद 5:30 और 7:30 के बीच में X plus 65 lakhs 65 lakhs x plus 65 lakhs हुआ है। That's what उसकी you're बात saying. कर रहे हैं हम लोग। All सर, right. ये एक बात Okay, है। so let's go to Mr. Bhakre. Let's get rid of this first. Let's go to समीर बाकरे साहब। समीर बाकरे साहब, आप जवाब दें प्लीज। सर मुझे तो हंसी आती है कांग्रेस पार्टी की गणित की जो विद्या है। इनकी गणित की ऐसी विद्या है कि नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख में हथिया लेते हैं। तो इनको इतना गणित आता है कि 65 लाख का वोटिंग। देखिए सर, ये ईवीएम हो या ये जो बाकी चीजें है ना, आई थिंक इट शुड बी अ क्लोज चैप्टर नाउ। मतलब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब व्यास जी ने इतने डिटेल में बताया है और कांग्रेस के मेरे मित्र उसको सुनना भी नहीं चाहते। वो अपनी एक कैसेट लगा के बैठे हैं कि अरे 65 लाख। व्यास जी ने पूरा डिटेल में बताया है। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये नेशनल हेराल्ड का जो न्यूज़पेपर आप दिखा रहे हैं ना सर, यही इनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए यंग इंडियन कंपनी आपने बनाया, जिसमें आपने 50 लाख का शेयर कैपिटल में 90 करोड़ का लोन टेक ओवर करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हत्या ली है। तो इस तरीके का जो गणित है, और कांग्रेस की पार्टी ऐसा गणित करती है। और चाइना के मामले में हमारे से बात करते हो, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या इनका एमओयू हुआ, ये बताइए आप। तो कैसा है, कांग्रेस पार्टी का कोई मॉरल राइट नहीं है कोई चीज पे बात करने का। और प्रदीप जी और मैं राजू जी, आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरी तरीके से नेशनल हेराल्ड स्कैम में घिर चुका है। और इसको डाइवर्ट करने के लिए अभी उन्होंने यूएस ट्रिप निकाला है, और यहाँ जाके वही घिसी-पिटी कैसेट जो है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अरे भैया, आप बायस्ड है तो आप वायनाड से क्यों चुन के इस्तीफा दे दीजिए, प्रियंका जी को बोलिए। आप सोनिया जी ने राज्यसभा में तो उनको भी इस्तीफा देने लगाई है। इतनी इन्होंने महाराष्ट्र से जो सांसद चुन के आए थे, बड़ी बातें करके 31 सांसद हमारे आए, तो उनको इस्तीफा देने बोलिए ना। तो ये कैसा है, ये जब कैसा है राजीव जी की अगर हम जीते तो सब संस्थान बराबर है, और अगर हम हारे तो संस्थानों पे उंगली उठाओ। तो ये इनका पुराना धंधा है। और मुझे लगता है सर, ये जो ईवीएम और ये जो वोटिंग का जो अभी डिस्कशन है ना, इट हैज गॉट बियॉन्ड एब्सर्डिटी। ये एब्सर्ड के लेवल पे जा चुका है, जब इतने बार प्रूव हो चुका है कि एवरीथिंग इज राइट। इनके सब इलेक्शन एजेंट वहां पर साइन कर रहे हैं, सबने वोटिंग गिनने के बाद वो सब साइन किया। तो इसमें सर क्या डिस्कशन करना है? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि सर, आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन। मतलब सर, मेरा एक और सवाल था सर आपसे। सर, मेरा एक और सवाल था आपसे। भरत सोनी साहब, जरा ध्यान से सुने। सर, एजीएल के ऊपर मुझे जवाब देना है सर। हाँ, बिल्कुल, आई एम कमिंग बैक टू यू। सर, मे आई फिनिश द डिस्कशन ऑन द ईवीएम, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सर, डोंट वरी। उन्होंने एजीएल का भरत सोनी साहब, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई एम कमिंग टू यू, 1 सेकेंड। समीर बाकरे साहब, ये कहा जाता है कि आपने हमेशा ईवीएम को हैक किया, ईवीएम को हैक किया, ईवीएम को हैक किया। अब ये कैसे हैक हुआ ये मालूम नहीं पड़ता है, अभी तक तो मुझे तो मालूम पड़ा नहीं है। बट देन आई एम नॉट एन आईटी एक्सपर्ट, नाइदर इज भरत सोनी साहब नॉर इज सुशील व्यास साहब।
भरत सोनी साहब को शायद इस विषय में ज्यादा जानकारी होगी। आफ्टर ऑल भरत सोनी साहब इज अ बैंकर। तो सर मेरा ये कहना है कि लोकसभा के चुनाव में आपके फिर 240 कैसे आ गए? आप 400 पार कर लेते। अगर आप ईवीएम हैक कर पाते बाकरे साहब, कोई सवाल पूछता ही नहीं, 350 तो ले आते। सर मेरी जो प्रिडिक्शन थी कि 325 से 335 आएगी बीजेपी की, वो तो ठीक कर देते। व्हाई डिड यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग समीर बाकरे साहब? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ हाँ, तो व्हाई डिडंट यू डू इट? यू शुड हैव डन इट। द डिस्कशन हैज बिकम रियली मतलब नॉनसेंसिकल एंड एब्सर्ड। मतलब किस तरीके का ये आर्गुमेंट लेना चाह रहे हैं, वही 65 लाख की कैसेट, वही ईवीएम की कैसेट। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना इनके पास कोई जनता का एजेंडा है, ना पार्टी का कोई रोड मैप है। कंफ्यूजन और कंफ्यूजन सर एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, और देखिए ये जब भी कोई इनके ऊपर विपदा आती है, यूएस जाके आते हैं, कुछ तभी बात स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया में वो डिस्कशन चलता है और उनका ये हो जाता है। और देखिए ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, ये पूरी तूल पकड़ चुका है, इनके ऊपर चार्जशीट। सर एनीवे द मैटर्स इन कोर्ट, वी विल सी अबाउट दैट। ईडी ने भी प्रॉपर्टी जब्त की है and they are seeing a real danger of these people going to jail. Right, so let's No, go. Bakre Sahab, Rahul Gandhi also talks outside when he goes out of the country of the judiciary being intimidated. Judiciary को भी ये सरकार intimidate करता है। But अभी जो धनकर साहब, निशिकांत दुबे जी जो कर रहे हैं, क्या what do you call it? Don't you call it intimidating the judiciary when you talk about Chief Justice cannot set terms for the president? The judiciary chief justice cannot be a legislate, he has got no power. तो क्या ये इंटिमिडेशन नहीं है बाकरे साहब? सर कैसा है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही इज आल्सो डिस्टिंग्विश्ड लॉयर। तो ऐसा नहीं है कि ही इज सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट एज पर लॉ। ही इज जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव कि जो आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी जो एजेंसीज है या सभी जो संस्थान है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे प्रेस हो, तो इनका एक अपना रोल है। Nobody can encroach upon the role of the others। तो यही वो कह रहे हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने समझना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पे कमेंट करती है और उनको वेस्ट बंगाल का वायलेंस नहीं दिखता है, तो कोई ना कोई सर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्या सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अबाउट द लॉ? People can have their opinions, but we are respecting the Supreme Court decisions। हम चाहबानो जैसे डिसीजंस चेंज नहीं करते कि कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम डिसीजन चेंज कर दे। तो ये जो चीज है सर, सुप्रीम कोर्ट को हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, बट सम पीपल मे हैव अ राइट टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। दैट डजंट मीन दैट वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल है, उसी को ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट याद दिलाना चाह रहे हैं। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कैन अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट? वो एक लीगल सवाल है, व्यास जी उस पर ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, आई कैन से दैट हायरार्की में तो आज जो भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन जो है कि लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है। अगर लॉ भी सुप्रीम कोर्ट बनाना चालू कर दे, तो जैसा कुछ सांसद बोल रहे हैं, और आज कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू बी सो मॉरल। इनके कपिल सिब्बल साहब के इंटरव्यूज है, जो उन्होंने पूरी संसद में कहा है कि आई कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनके कपिल सिब्बल साहब जो इनके सरकार में मंत्री थे, उन्होंने ये बोला हुआ है सर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट टुडे हैज रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर एक्सेडिंग देयर जुरिस्डिक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कांग्रेस पार्टी ने कोई पास में नहीं बोला है, और जो भी सांसद ने बोला है, तो पार्टीज ऑफिशियल लाइन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। लेकिन जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है, ये कोई प्रेशर नहीं है। ही इज ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि पार्लियामेंट के राइट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या राइट्स। आई डोंट फील देयर इज एनी इंटिमिडेशन और एनी प्रेशर बीइंग पुट ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री। सर भरत सोनी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। सर मैं इनको थोड़ी सी जानकारी एजेएल के ऊपर देना चाहता था। सर एजेएल के एक डेप्थ रिकंस्ट्रक्शन, अगर वो समझते हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट है, तो डेप्थ रिकंस्ट्रक्शन के तहत डेप्थ सेक्शन 8 कंपनी है, जो पहले सेक्शन 25 होती थी। ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है सर। इसका आपने दिस इज अ टोटल आईआईटी। सर लेट मी कंप्लीट सर प्लीज गो अहेड। सर
अगर ये सेक्शन कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी जो अभी सेक्शन 25 सेक्शन 25 पहले कहता थी, अभी सेक्शन 8 कहलाती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है और रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, नियमानुसार डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है सर। और सर यही रुचि सोया में हुआ है प्रॉफिट के लिए, यहां कोई प्रॉफिट नहीं है। यही हुआ था वोडाफोन के अंदर, वहां भी राजीव जी, प्रॉफिट के लिए। तो इसलिए अगर ये बातें करना सर, मुझे कंप्लीट करें, मैं बीच में आपको बिल्कुल नहीं रोकता हूं सर। सर अगर ये उस हिसाब से हुआ है तो 700 शेयर होल्डर ने ईजीएम में अप्रूव किया है ये डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन को, और यंग इंडियन को ट्रांसफर किया है सर। और ये आजादी के समय का पेपर है, ये उस समय का पेपर थे जब आप लोग अपोज करते थे नेशनल हेराल्ड को, और आज भी आप लोग अपोज कर रहे हो नेशनल हेराल्ड को, क्योंकि वो वहां से आजादी के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप लोग ने हिस्सा नहीं, क्योंकि आपको अपोज करने में लगे हुए थे। तो उस हिसाब से एजेएल के अंदर आज जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से ये कंपनी है, और पूरी तरह से विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ ये कंपनी है। और सर आपको ये क्यों, आप बाकरे साहब को रिप्लाई करें, बाकरे साहब को रिप्लाई टू योर चार्ज। मुझे तो आश्चर्य होता है सर, आई वुड लाइक टू रिप्लाई। मैं 5 चीजें इनको बताना चाहता हूँ। एक तो ये बोल रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग है, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बैंकर है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास बैंकिंग लाइसेंस है कि जो इन्होंने 90 करोड़ का लोन एजीएल को दिया? तो ये पहले तो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर इन्होंने बहुत बड़ा वायलेशन किया है। दूसरी बात है, रिस्ट्रक्चरिंग करने का अधिकार इनको किसने दिया? लोगों ने कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिया, इसका लोन इन्होंने एजीएल को दिया, और कल जाके रिस्ट्रक्चरिंग। सर आप बैंकर है सर, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, यू आर नॉट, कांग्रेस पार्टी इज नॉट अ बैंक, नॉर एजीएल वाज रुचि सोया और फाइनेंस कंपनी। सर और एक मैं बोलना चाहूंगा, ये रिस्ट्रक्चरिंग करके 50 लाख में उन्होंने यंग इंडियन को ट्रांसफर किया। क्यों भाई, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं आपने शेयर होल्डिंग ट्रांसफर किया? क्यों आपने वो सेक्शन 8 कंपनी का मुखौटा सामने करके यंग इंडियन, जिसमें पूरे गांधी परिवार के लोग हैं, जिन्होंने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की है, उनको क्यों ट्रांसफर नहीं किया? क्यों पब्लिक ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं किया? क्यों आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यंग इंडियन सेक्शन 8 कंपनी है, और यंग इंडियन के पास 1 करोड़ कहां से आए? आप देखिए, मतलब आप बैंकर है ना सर, वो 1 करोड़ रुपए उनके बैलेंस शीट में 2010 में कहां से आए? मेरे पास वो बैलेंस शीट है, वो आपने कहां से लाए? वो हवाला की एंट्री वहां पर आई हुई है, और उससे आपने 50 लाख कांग्रेस को दिया और 90 करोड़ का लोन सेटल किया और 5000 करोड़ के एसेट्स अंदर किए। सर किस तरीके का रिस्ट्रक्चरिंग है ये? और क्या कांग्रेस पार्टी बैंकिंग लाइसेंस लेके बैठी है? और अगर ये शेयर ट्रांसफर ही करने थे तो पूरा लोन माफ कर देना था, उनको क्यों शेयर ट्रांसफर करने थे सर? अगर 90 करोड़ में से 50 लाख के लोन ट्रांसफर किया सर, तो अगर आप करना चाहते थे तो पूरा ही लोन माफ कर। लेकिन बाकरे साहब, एक मिनट, भरत सोनी साहब, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड सर, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सिंगल पॉइंट, इन्होंने बोला शेयर होल्डर ने ईजीएम में दिया है सर, 297 मिस्टीरियस शेयर होल्डर्स गायब है सर, 1096 शेयर होल्डर का लिया है सर। समीर बाकरे साहब, जेंटलमैन, समीर बाकरे साहब और भरत सोनी साहब, चार्जशीट फाइल हो गई है, मैटर्स इन द कोर्ट, इट विल बी आर्ग्यूड, लेट्स लीव इट एट दैट, लेट्स बी वेरी क्लियर। इवन दो the points that have been raised on both sides have a degree of validity, even though I still can't figure out how a political party can give a loan to anybody. I have no idea. I didn't know a political party could do that. Can a political party give a loan? 10th April 2024 was the 365th day. On that day you are filing it, not 10 years before that. Sir, that's a question you will raise. That's a technicality you will raise in court. But Bharat Soni sir, you are raising it, sir. Of course you will. If you don't, you'll have very bad lawyers. You have Mr. Abhishek Manu Singhvi with you. Of course you will raise it. My point is very simple कि मुझे ये नेशनल हेरल्ड का केस पढ़ के, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो फाइल किया उसको पढ़ के ये मुझे मालूम पड़ा कि पॉलिटिकल पार्टी लोन भी देती है। सो let me try my luck with the BJP or with the शिवसेना, एकनाथ शिंदे सेना, और with the कांग्रेस। सर हमको भी दे दो, नेशन नाउ नीड्स राजीव जी दे दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 2020 में विड्रॉ करती है, 2020 में उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया सुप्रीम। अरे सर क्या बात कर रहे हो? चलो लेट्स कम बैक। सुशील व्यास जी, लेट्स कम बैक टू महाराष्ट्र प्लीज।
प्लीज, ये नेशनल हेराल्ड का जो मैटर है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, पता नहीं कब तक चलेगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सुशील व्यास जी, आप ये बताइए, आज की तारीख में एक तो कश्मीर का जो इशू है वो तो है ही, माई ब्लड बॉइल्स, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ आई टॉक अबाउट इट, आई फील सो एंग्री, आई डोंट नो व्हाट टू, आई डोंट नो व्हाट एल्स आई विल से। लेकिन सर, मैं आपसे सुशील व्यास जी, महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, अभी प्रॉब्लम है सर, समस्या बहुत बड़ी है। समस्या ये है कि आज की तारीख में मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत बुरी तरह सूखा पड़ा हुआ है सर, पानी नहीं है। जो पानी पी रहे हैं ना, हाँ, हमारे भरत सोनी साहब, मराठवाड़ा विदर्भ में पानी नहीं मिल रहा सर। व्यास साहब, सम ड्रास्टिक एक्शन हैज टू बी टेकन सर, प्लीज, दिस इज गोइंग टू बी बैड। अभी 2 महीने बचे हैं सर बारिश को, आप बताएं सर प्लीज, व्यास साहब। बजाज साहब, ये जो आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं मराठवाड़ा के 2 जिलों की, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर समस्या है और शासन प्रशासन दोनों उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। उचित कदम उठाने के लिए लगातार बैठकें हो रही है और जो कदम जनता के हित में लिए जा सकते हैं वो लेने की, वहाँ तक पानी की समस्या को किस तरह से हल के स्थानीय स्तर पर या कहीं बाहर से कुछ तरह से व्यवस्था करके, ये सारी निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी और दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता के साथ काम हो रहा है। अब मैं जो आपकी इन दोनों हमारे प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूं। और जिस बात को आप बार बार कह रहे थे बजाज साहब, कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जब कोई भी राजनीतिक दल है, वो जिसको जो चंदा या कुछ भी तरह का डोनेशन फंडिंग मिलती है, वो किसी भी रूप से लोन के रूप में किसी को भी नहीं दिया जा सकता, ये हमारा कानून है जी। नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स सीज हो गए थे। क्यों सीज हो गए थे? इन्होंने अपना कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि दे आर सपोज टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी विच आर रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बट रजिस्टर्ड आल्सो, उनको एक निश्चित समय के अंदर अंडर आईटी लॉ एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आल्सो अपना आय व्यय का रिटर्न फाइल करना होता है। वो दे फेल टू फाइल दैट रिटर्न, दैट्स व्हाई इफ यू फेल टू फाइल अंडर सेक्शन 129 then your account can be seized, and that's why their accounts were seized, bank account and all that. So now they will not reveal the truth before this people of this country. So ये जान लेना चाहिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और अपने आप को सच साबित करना उतना ही मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए कि कहने के लिए कुछ भी कहते। अब सवाल आप लोगों के मैं बातों को सुन रहा था कि ये रिस्ट्रक्चरिंग है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 8। अगर अंडर सेक्शन 8 है तो मेरे भाई, आपके पूरे देश में दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक मैं समझता हूँ करोड़ों सदस्य होंगे। हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पार्टी है, तो क्या आपको एक ही परिवार के कुछ लोग मिले जो 80% के करीब जिनको आप हिस्सेदारी दी गई? कि आप भारत के कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी आप बांट देते, अलग कम से कम राज्य स्तर पर बांट देते। क्यों एक ही परिवार के पास लगभग 80% शेयर दिए गए? अगर ये नॉन प्रॉफिट है तो वो भी उसमें हिस्सेदारी लेकर अपना योगदान देते। आपने ही कहा 700 शेयर होल्डर है, तो भाई उन 700 शेयर होल्डरों में ही बांट देते। एक ही परिवार को 80% के करीब शेयर देने का हमारे तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। और अगर है, और जैसे बजाज साहब ने कहा, उसमें ज्यादा मैं विवेचना नहीं करना चाहता। मैटर न्याय प्रविष्ट है, जो सब जुडिशियल मैटर होता है, एज ए लॉयर मैं उसमें ज्यादा बहुत टेक्निकल और पे नहीं जाना चाहता। व्यास जी, मैं वो पुरानी बात पे आता है, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बाहर जाके देश के बाहर इंटिमिडेटिंग द जुडिशरी, और अभी धनखड़ साहब के जो प्रश्न उन्होंने उठाए ऑन सीजे चीफ जस्टिस, एंड उसके बाद निशिकांत दुबे जी ने आरोप जिस प्रकार से लगा, शो मी द फेस एंड आई शो यू द लॉ। फिर बाकर साहब ने कहा कि आपको वहां दिखता है, आपको वेस्ट बंगाल। नाउ हाउ डू यू सी दैट? Is the judiciary being intimidated? You are a very learned advocate. नाम्यार जी, जिन शब्दों को उपयोग जुडिशरी के बारे में राहुल जी और उनके दल के नेता लोग सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, और आपने भी जिसका जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो सो कॉल्ड इंटिमिडेशन किस तरह से हुआ? किसने रोका सर्वोच्च न्यायालय को समय समय पर आदेश पारित करने से? किसी ने नहीं रोका। संविधान उनको अधिकार देता है, वही संविधान संसद को भी अधिकार देता है कि हम देश के हित में, जनता के हित में समय समय पर जरूरत पड़ने पर कानून को बनाएं, और कानून
बनता है। और उसके बाद केशवानंद भारती का जो 1973 फरवरी का 13 जजों का आज तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच जिसने सुनवाई की केशवानंद भारती में, उसने स्पष्ट लिखा है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन मात्र और मात्र अगर बेसिक जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई कुठाराघात होता है या उस पर कोई हमला होता है किसी कानून की वजह से, तब ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसमें देख सकता है, अन्यथा संसद द्वारा बनाया हुआ कानून सर्वोच्च प्रिय है, वो लागू होगा। तो हमें जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जो लोग जो तमाम बातें हमारे कह रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी जो केशवानंद भारती के उस जजमेंट को फ्लाउट करते हुए भारत की संसद ने कानून पास किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके हम जानना चाहते हैं। सर, यू आर बीइंग वेरी क्लेवर होने के नाते मैं जानना चाहता हूं। सर व्यास जी, यू आर बीइंग वेरी क्लेवर सर। यू शुड आस्क His Honor, His Lordship संजीव खन्ना साहब। जो संजीव खन्ना साहब ने जो सवाल पूछे, ये सवाल तो आपको उनको पूछना चाहिए जिसको लेकर के निशिकांत दुबे साहब ने जो कुछ कहा। डू यू थिंक, आई एम आस्किंग यू सर, कि निशिकांत दुबे साहब ने जो कुछ कहा, क्या उनकी बातों में कुछ वजन है? क्या लगता है आपको? निशिकांत दुबे आपको धर्म संकट में डाल रहा हूं, आपको धर्म संकट में डाल रहा हूं, मानता हूं। बोलिए। नेतृत्व ने अपने आप को अलग कर लिया, ये तो बात सही है। नड्डा साहब, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने कह दिया ये उनके व्यक्तिगत विचार है। क्या राहुल गांधी जी के न्यायपालिका के ऊपर बयान और तमाम कैसे अपने आप खड़गे जी भी ऐसा बयान देने की हिम्मत जुटाएंगे, या वो भी बयान कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाए? निशिकांत दुबे जी के बयान से तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ये उनके व्यक्तिगत विचार है। But do you agree? Do you disagree with it? I am asking you personally. Forget about the BJP. I am asking you. Sir, don't you think the Supreme Court and all other courts have to be more aware of what is really happening in the country? They can't be sitting in glass houses or in ivory towers. Sir, That's what I said. मैंने यही कहा जी। बजाज साहब कि सबकी एक अपनी सीमाएं हैं कि हर व्यक्ति को अपनी परिधि के अंदर रहना है। जैसे संसद की एक अपनी परिधि है, न्यायपालिका की एक अपनी परिधि है। न्यायपालिका को संसद द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना है, और अगर उन कानूनों को जो संसद ने बनाया है उसमें कोई कानून ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स को अटैक करता है या ब्रीच करता है, जो केशवानंद भारती का ऐतिहासिक जजमेंट है, तब वो उसमें आ सकते हैं रिट ऑफ मैंडामस। तो लेकिन मुझे बताइए कि कहाँ ये घटना हुई जिसको हम लोग तमाम ये माहौल बनाने जा रहे हैं? अगर वो घटना होती है किसी की मौलिक अधिकारों छोटी सी बात पूछूं तो हम उनके साथ खड़े हैं। सॉरी प्रदीप जी, ये छोटी सी बात पूछूं सर व्यास साहब, क्योंकि आप वकील हैं इसलिए पूछ रहा हूं। सर, आपने रिट ऑफ मैंडामस की बात करी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ वेरी रेडिकल व्यू एंड सेज नो, you will be subject to contempt of court if you do not release all the data. Why doesn't the Supreme Court, the same Supreme Court bench, why have they not even considered the PM Care Fund? Sir? अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ये देखो, ये ज्यादा डिटेल में जाना और वो ऐतिहासिक चीजें हैं उसमें कुछ कहना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से मैं भाग नहीं रहा हूं आपकी बात को। मेरे पार्टी का अधिकृत रूप से क्या स्टैंड है वो लेकर कभी भी फ्यूचर में आप मुझसे कहेंगे, मैं एक बहादुरी के साथ उसका जवाब देने के लिए आपके अदालत में। बाकरे साहब, आई वांट टू आस्क यू, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया, एंड द कास्ट डिवाइड, एंड द कास्ट डिवाइड, वन टेंपल, one well, one burial ground, Hindus should unite. Now what is this? Now ऐसे एक माहौल पूरे देश में बन रहा है। At the same time, मोहन भागवत जी जिस प्रकार से कमेंट, how do you see this particular comment? बाकरे साहब। सर, ये संघ का जब से स्थापना हुई है 1925 में, तब से संघ का यही स्टैंड रहा है। कोई संघ किसी भी धर्म या जाति, मतलब जाति में कोई विश्वास नहीं करता। तो ये तो आज हम लोगों का 100 साल से वही स्टैंड है। जैसा कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के को लोग जो है हिंदुओं को जातों में बांटना चाह रहे, और कुछ जगह वो जो मतलब कास्ट सिस्टम है या अभी भी कुछ जगह है, तो उसके लिए मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। तो ये हमारे समाज में तो कोई कास्ट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल आर ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है तो उसके हिसाब से सभी के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो संघ का जो है मोहन भागवत जी, जो हमारे आदरणीय परम पूजनीय संघ चालक है सर, तो उन्होंने जो बोला हुआ है कि
कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये इट इज अ वेलकम स्टेट एंड इट इज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द संघ, मतलब सामाजिक समरसता यही संघ का नारा है। तो मतलब जो मोहन भागवत जी ने आज कहा है वो हमारा संघ का विचार करीब 100 साल से वही विचार पे हम लोग चल रहे हैं सर। तो भागरे साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो वक्फ बोर्ड का जो कानून आया, नया कानून जो आया है, उसमें उसकी सबसे पहली चीज जो ये हुई है, जो मेरी समझ में दो चीजें हुई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑट टू हैव बीन डन लॉन्ग टाइम अगो, दे वर नॉट, गॉड नोज व्हाई। इसके बावजूद कि मुझे ये मालूम है कि इंटरनली perhaps Bharat Soni Saab may not agree to it publicly, but I know for a fact that internally, even in 2013, there were lots and lots of legal luminaries within the Congress parties who had said, within the Congress party who had said कि ये वक्फ by user मत लेके आओ यार, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। But anyway, they were not listened to. मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, दो चीजें जो हैं इस कानून में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जो हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे भरत सोनी साहब, मैं चाहूंगा कि वो इस पर जवाब दें। सर, एक तो वक्फ बाय यूजर गया, उसको बाहर कर दिया बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट, एंड नंबर टू, ट्राइब्यूनल का जो वक्फ ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है, नाउ इट कैन बी अपील्ड इन द सिटी सिविल कोर्ट, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको लेकर के इतनी आपत्ति क्यों है सर? बाकी जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, जैसे आदरणीय सामान्य असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, ममता बनर्जी हो गई, कांग्रेस के लोग हो गए, मतलब सर ये तो देश के हित में है ना सर? भागरे साहब सर, इससे भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 40, ये जो 2013 में सेक्शन 40 कांग्रेस पार्टी ने डेलिबरेटली वक्फ कानून में लाया सर, वहां से सबसे बड़ा प्रॉब्लम चालू हुआ। और ये जो जमीन, मैंने ऐसा आप देखेंगे ना कि 700 साल मुगल हिंदुस्तान में थे, लेकिन उनके इसमें 50,000 एकड़ वक्फ के पास थी। और जब से कांग्रेस पार्टी ने 1995 से और उसके बाद 2013 में कानून बनाया, उसके बाद इनकी 40 लाख एकड़ जमीन होती है। तो ये जो जमीन देने का सर एक बड़ा जो धांधली थी वो सेक्शन 40 से आ रही थी। और दूसरा वक्फ बाय यूजर, आज मुझे बताइए कि आज कोर्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं, कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम 300 साल पुराने कहाँ से दिखाएंगे कोई मस्जिद बनी है। तो भाई साहब, आप 5000 साल पुराने भगवान श्री राम पे सवाल कर रहे थे, तो उस वक्त तो आप कागज मांग सर 7,500 साल पुराने, 7,512 years sir, I can give you the exact number, I can give you the exact date also। जी बोलिए सर। Yes, that's fantastic सर। लेकिन कैसा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं और ये जो अपने समय समय पर आप जो बोलते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल और ये चिदम्बरम साहब बड़े बड़े लॉयर हैं, तो सर सेक्शन 40 को मुझे जस्टिफाई करके दिखाइए। किसी भी प्रॉपर्टी को जाके आप अपना बोलना चालू करें, दिस इज नथिंग बट अ माफिया राज, कि आपने जहां पर हाथ रख लिया, जहां पर उंगली रख ली, भाई मेरी प्रॉपर्टी हो गई। और ये जो वक्फ बाय यूजर है, भाई आप जो लैंड डोनेट कर रहे हो अल्लाह को डोनेट कर रहे हो, तो आप दूसरे की लैंड अल्लाह को कैसे डोनेट कर सकते हैं? आप जो लैंड यूज कर रहे थे, यानी आप टेनेंट रह के है और आपने लैंडलॉर्ड की जमीन बेच दी, ऐसा हो गया वो। सर इसमें ये कहा जा रहा है कि एक या दो अमेंडमेंट लाई जा सकती थी। आपने जान करके, कांग्रेस की तरफ से ये चार्ज आ रहा है कि आप लोगों ने जान करके इसको इतना बड़ा बना दिया टू ह्यूमिलिएट द मुस्लिम कम्युनिटी। भागरे साहब सर, देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन दिस। जहां जहां पर वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत थी, वो सेक्शन सर बदले गए। अगर हमको ऐसा करना रहता तो हमने वक्फ कानून ही हटा दिया रहता। अगर इस तरीके के आर्गुमेंट जैसे डिमांड आ रही है करना चाह रहे, हमने तो वक्फ कानून रखा हुआ है जो गरीब मुस्लिम को इन्होंने बेनिफिट नहीं पहुंचने दिया था। कुछ चंद मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान थे सर जिन्होंने फायदा लिया हुआ है, और जो लैंड माफिया बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने ही पूरा रेंट, पूरी प्रॉपर्टी का यूसेज। और मैं कांग्रेस के मेरे मित्रों को पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी आपकी वक्फ कानून बहुत बढ़िया चल रहा था, तो 40 लाख एकड़ में आपको 167 करोड़ का कैसे इनकम आ रहा था? कितने आपने हॉस्पिटल खोले, कितने स्कूल खोले, कितने स्किलिंग सेंटर खोले आपने वक्फ की जमीन पर? तो सर ये बहुत बड़ी धांधली थी, जो कांग्रेस जैसा नेशनल हेराल्ड में किया है, वैसे ही वक्फ कानून होने वाला है। सर कौन से लोग बाहर आते हैं इसमें? भरत सोनी साहब, द बीजेपी इज गेटिंग अ जन जागरण अभियान। जन जागरण अभियान है, 16 पेज का वो बुकलेट निकाल रहा है, विच इज एक्सपोज योर तुष्टिकरण। आपको जो तुष्टिकरण है, वकाफ इज दिस अगेंस्ट मुस्लिम्स, उसको एक्सपोज करने वाले भरत सोनी साहब। हाउ यू गोइंग टू टैकल दैट? अल्टीमेटली आपका तुष्टिकरण एक्सपोज होने वाला है।
प्रदीप जी, उसका नाम है मिशन मुसलमान। बोलिए। वक्त सुधार जागरण अभियान, उससे समझेंगे भाईजान, ऐसा है। सो सर देखिए, जिस पार्टी ने एक किसी भी मुसलमान को लोकसभा में नहीं भेजा, एक किसी मुसलमान को राज्यसभा में नहीं भेजा, हाँ, वो मुसलमान के हक की बातें करेंगे आज। ये मुस्लिम की बात हो गई। मैं मराठवाड़ा के पानी के हिस्से पे आता हूं सर। मराठवाड़ा के पानी के बारे में पृथ्वीराज चौहान जी जब थे तब चेक डैम्स बने थे, वो सारे चेक डैम्स सूख गए हैं, उस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। तो वो बातें ना करे कि हम लोग हित के बातें ना करते हैं और हम लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। सर पानी पहुंचाइए, और जो किसानों को जो आपने दिया था एश्योरेंस कि आपका 16,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे, उसको माफ करिए पहला। दूसरी बात, लाड़की बहन के जो सबको पैसे देने वाले थे 2100 रुपया, वो दीजिए, उसको 500 मत करिए। तो ये मत करिए। और दूसरा, संघ का आपका जो इतना बड़ा ये है कि भाई उसके अंदर कोई जाति धर्म नहीं है, तो उसमें किसी दलित को पहले बना दीजिए उसका मुखिया, या किसी महिला को बनाइए। हाँ, तो ये मत कहिए आप कि आप लोग जाति। राष्ट्रीय सेविका समिति अलग होता है, उसकी मुखिया महिला होती है। सर आप थोड़ा संघ सा का मुखिया क्यों नहीं दलित है सर? संघ का मुखिया दलित क्यों नहीं है? रखिए ना, बेसिक फैक्ट्स तो करेक्ट रखिए ना सर। सर भागरे साहब उनको बोलने दीजिए ना। सर इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। प्रदीप जी, आई एम गोइंग टू मिस्टर व्यास। भागरे साहब, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। All the chiefs of the Sangh have all been Brahmins except one, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को छोड़ करके, माय वेरी डियरेस्ट फ्रेंड रज्जू भैया को छोड़ करके बाकी सभी ब्राह्मण थे। इसमें कोई दो राय नहीं, और ना ही इसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात है। जी भरत सोनी साहब, आप कुछ और बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर, सो आई कैन गो टू व्यास साहब। अभी आता हूं वक्फ के ऊपर। सर वक्फ के प्रॉपर्टीज के बारे में वामसी पोर्टल पे सारी जानकारी कंप्यूटराइज की गई है। अब उसके अंदर 6 महीने के अंदर फिर से कागज दिखाइए, क्यों बोल रहे हो? आपके पास सारा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में से देख लीजिए आप। तो सर अभी आप मिशन मुसलमान पे निकले हो ना, तो जाके सबको समझाइए, लोग समझ जाएंगे। लोग तो आपकी बातों पे जिस प्रकार से किसान बिल के ऊपर, कृषि बिल के ऊपर लोग समझ गए थे और आपको विड्रॉ करना पड़ा था। कृषि बिल कितना अच्छा था, सारे कार्यकर्ता जाके लोगों को समझा के आए। पंजाब बॉर्डर पे चले गए थे, हरियाणा बॉर्डर पे जाके समझा रहे थे लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। आपको बिल वापस सर उसके ऊपर एक और शो करेंगे। किसानों की आय आप दुगनी करने वाले थे सर, उसके ऊपर एक और शो करना पड़ेगा। But you know, Bharat Soni साहब, when we getting a feedback from आम मुसलमान, बोले यार ये हाजी अली ट्रस्ट एक फैमिली ट्रस्ट है, हाजी अली ट्रस्ट और वो बाबा मखदूम था, फिर महिम वाला दरगाह ट्रस्ट वो एक फैमिली ट्रस्ट है जो अपने ही लोग अपने ही फैमिली में बटा हुआ है। यू नो देयर इज अ नीड फ्रॉम विदिन द अर्ज फ्रॉम विदिन द कॉमन मुसलमान की यार ये व्हाई इज इट नॉट अमंग द कॉमन मैन, व्हाई इज इट ओनली फैमिली ट्रस्ट ऑल दीस प्लेसेस। एनीवे व्यास जी आप कुछ बोलना चाहते थे? नाबियार जी, मैं सिर्फ, मेरे भाई भरत जी कुछ कह रहे थे लाड़की बहन योजना के बारे में। एक मेहरबानी करके थोड़ी सी गलत नैरेटिव मत फैलाइए। या हमको 2100 जरूर हमने वादा किया है और उसको पूरा भी करेंगे हमारे कार्यकाल में, लेकिन जो वर्तमान में 27 जून 2024 को बजट के माध्यम से बजटरी प्रोविजन करके जो 1500 रुपये हमारी बहनों को सबलीकरण करने की बात थी, वो हम दे रहे हैं। इस महीने का भी दिए है, उसको 500 करने का कोई इरादा नहीं है। अब आपको मैं क्लेरिफिकेशन बता दूं कि जब ये गाइडलाइन पढ़ लीजिए, तो 27 जून को जब ये योजना लागू हुई, उसमें कहा गया था इनके क्या क्या यार्ड स्टिक्स होंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर में एक पैरामीटर ये भी था कि कुल मिलाकर अगर अन्य योजना में कोई उनको अनुदान मिल रहा है तो वो 1500 से ज्यादा है तो इस योजना का लाभ उन बहनों को नहीं मिलेगा। और अगर मान लो 1500 से कम मिल रहा है तो जितना उनको मिल रहा है उतना कम करके उतना उनको अनुदान दिया जाएगा। अब जैसे 500 वाली बात इसलिए आई कि नमो शेतकारी योजना में हमारी कुछ बहनों को ऑलरेडी 1000 रुपये का वो जो अनुदान मिल रहा है। जब 1000 रुपया ऑलरेडी नमो शेतकारी योजना में मिल रहा है तो 500 रुपया लाड़की बहन योजना का मिला करके 1500। बात ये थी कि बहनों को हर महीने 1500 रुपये मिलेगा, तो 1500 रुपये से कहीं कम नहीं हो रहा। अब आप चाहते हो वो 1000 रुपया वो भी मिले, 1500 ये भी मिले, तो आप कह दीजिए कांग्रेस पार्टी की ये घोषणा है, आप अगली बार आएंगे तो ये दोनों चीजें देंगे।
तो आपने भी तो वही नहीं कहा ना, आपने भी तो अपने घोषणा पत्र में 2100 ही कहा, आप ही कहते थे 2100 प्लस 1000 3100 देंगे। तो प्लीज गलत नैरेटिव मत फैलाइए। बहनों को जो 1500 की घोषणा है वो लागू है, इस महीने का भी दिया गया, अगले महीने का भी दिया जाएगा, और 2100 का हमारा वचन है, हमारे इस वर्तमान कार्यकाल में वर्तमान युति की सरकार उसे पूरा करेगी। Right, so let me go across to Bhagre Saab. Bhagre Saab, first of all, congratulations. India's foreign exchange reserves have risen for the sixth straight week. At the moment, we are at $677.84 billion, which is absolutely fantastic. Number two, it is expected. This is what Standard and Poor's have said, and I'm sure my friend Mr. Bharat Soni would be very, very familiar with that, as well as Morgan Stanley. They have said that India will overtake Japan by August, September as the fourth largest economy in the world. So, and I think that's something which we really need to be proud of. And number three, the kind of reception that Mr. Modi was given in Saudi Arabia, well, that was mind-boggling. It was absolutely fantastic. वो जो F-15 Eagles साथ में उड़ते हुए with Air Force One के साथ, हमारी Air Force One के साथ, that was really and truly lovely. Would you like to say something on that, sir? Bhagre sir. Yes, sir. This is a very encouraging and good sign for the country that continuously the foreign exchange reserves are rising. And I would like to add one more thing, that whatever discussions regarding in the world it is happening about the tariffs, eventually, mark my words, India will be the greatest beneficiary of that, because lot of companies are already knocking on the doors of our country to start production and to export things from here. So these are all very good things. On a lighter note, I can only say that tomorrow Mr. Rahul Gandhi should not say that I will now question the International Monetary Fund, that how India can rise above Japan, and it is all first. So I want the proofs of that. So ऐसे कांग्रेस पार्टी को मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी उस लेवल पे आ सकते हैं. ऑन अ लाइटर नोट, आई एम सेइंग दिस, और वो भी बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक के जो आपके जो एक्सटर्नल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के उसके भी फिगर्स पे क्वेश्चन कर सकते हैं. सर, मिस्टर राहुल गांधी इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन क्वेश्चन एनीथिंग ऑन दिस अर्थ. सो आई विश, So that's democracy. So that is democracy. that he should at least believe the institutions which have been established over a period of time और जिसका credibility है, and India will not only surpass Japan, sir, will be the third largest. And there is one other good news. Very soon. And one other good news that I must share with everybody. एक और पता नहीं अच्छी खबर है कि बुरी खबर कहेंगे आप इसको, ये अच्छी खबर है एक्चुअली. क्या है सर? द चाइनीज इकोनॉमी वाज स्टैंडिंग ऑन टू पिलर्स. दो पिलर थे चाइनीज इकोनॉमी के, एक तो एक्सपोर्ट्स और दूसरा रियल एस्टेट. As Bharat Soni Saab will bear me out, real estate has collapsed in China. There are no takers for over 10 million flats, 10 million houses. They are lying there vacant for people to move in because there are no sales. Number three, exports have come down by 80% from China. ये भी कहा जा रहा है कि there are at least 7 different multinationals which now want to establish manufacturing capabilities, manufacturing facilities over here in India. Now I ask you, Bhagre Saab, ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं. Sir, how will you control the bureaucracy? क्योंकि लोग यहां पर आना चाहते हैं, पूरी दुनिया से लोग आना चाहते हैं, यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आपके ब्यूरोक्रेट्स यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, sir, they are going out of their way to undermine Mr. Modi. Mark my words, I am saying so openly. ओपनली बोल रहा हूं सर. भाग्य साहब, अब आप बोलें प्लीज. सर, सेम ब्यूरोक्रेसी जो थी उसी को मोदी साहब ने एफिशिएंटली यूज किया. आप देखिए सर, अगर ये ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब प्रोएक्टिव के काम नहीं करती तो क्या हमारे मोबाइल का प्रोडक्शन इतना बढ़ता? जहां सर वेरी फ्यू एरिया सर आईटी सेक्टर में, उसके बाद एक्सपोर्ट्स हो रहे. क्या सर महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगर ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं करती तो इतने यूनिट्स लगते थे? सर मैं एक छोटी सी बात, सॉरी भाग्य साहब, सबीर भाटिया, द इन्वेंटर ऑफ हॉटमेल, as he says, inventor of Hotmail, what does he say? He said he had a product which was far better than WhatsApp and it would have been launched in India. It is the bureaucrats who destroyed it, sir. And these experiences are being shared by startup entrepreneurs all over the place, and I think all three of you, irrespective of party allegiances, should agree on this. The bureaucrats have to be there to facilitate, not to block, not to blockade. Bhagre Saab, please. सर देखिए, इंडिया इज कंटिन्यूसली राइजिंग ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स,
और उसमें कैसा है कि yes there may be certain quarters where still the issues are there, but the intention of Modi government as well as Devendra I'm ji not government questioning the is Modi to government. Sir, facilitate I'm not those questioning things. the Modi सर और government. जी बोलिए, मैं मोदी गवर्नमेंट और देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं नहीं क्वेश्चन सर, नहीं कर मैं रहा वही हूं आपसे बात करना जी चाहता हूँ कि इफ देयर इज एनी इंसिडेंट which comes to the notice of the government and it is a open thing. एक इंसिडेंट अगर बताओ कोई सर भी आज सर आज मुझे बताइए कि ट्विटर पे भी आप किसी को टैग करके जी आप बता सकते हैं अगर समीर भाटिया करेक्ट जी के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो ही शुड हैव गॉन अहेड वी ही विश डिड हिम लक ही डिड दे थ्रू हिम आउट और दूसरा कैसा है सर टेक्नोलॉजी कंपनीज आई एम आल्सो एसोसिएटेड यस with lot of technology companies and I feel that and I have experienced कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में सर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम से मिनिमम रहता है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर इंटेलेक्चुअल कैपिटल दे आर नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड fine वेयर all that is fine but you wanted an example Pradeep ji एक second you wanted an example sir you wanted an example this is not directly related to information technology this is not directly related to he said about startups WhatsApp no sir this is not directly related to business this is related to bureaucracy okay how the bureaucracy is trying to undermine your government that is our government at the moment Devendra Fadnavis sahab is the chief minister of Maharashtra how people are going out of their way to try and undermine him sir 90 साल पुराना पार्ला का जैन मंदिर उसको कैसे डिमोलिश कर दिया एक वार्ड ऑफिसर ने बीएमसी के वार्ड ऑफिसर ने उसको डिमोलिश कर दिया 90 साल पुराना 1935 का जैन टेम्पल सर विद द केस स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट और क्या एक्शन लिया गाडगे साहब को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया उसको सस्पेंड कर दिया सर डू यू थिंक this man would have had the guts to do it unless and until he had the backing of some people आप बताइए सर भागरे साहब सर देखिए वो पूरे प्रकरण पे गवर्नमेंट सीरियसली देख रही है और उन्होंने एक्शन भी लिया है जी जो भी गिल्टी रहेगा सर उसको I hope so. किया जाएगा आफ्टर इंक्वायरी सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि वेयरएवर वी आर फाइंडिंग सच इंस्टेंसेस जी। जहां पर इंडस्ट्री को तकलीफ सर आप मुझे एक सिंपल बताइए देवेंद्र जी ने ओपन फोरम से बोला था कि कोई भी उद्योग को अगर तकलीफ देता है तो उस पे आप मौका लगाइए दैट वाज फॉर द एक्सटॉर्शन या कैन यू नॉट रीड अ मैसेज इन दैट कि Yes. अगर कोई भी इंडस्ट्रीज को कोई भी I क्वार्टर agree with you. होती है सो गवर्नमेंट इज रेडी एंड Yes. But that is Bakre साहब again that word जहां आपको हिट करना है लोगों का ऑपोजिशन का कहना आप हिट नहीं कर रहे हो वाल्मीकि करार तक आप पहुंच के आपने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया जिस प्रकार से दमानिया वगैरह वहां पर बैठे हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन शुड हैव इंक्लूडेड द मिनिस्टर देयर ही हैज ओनली टेकन ऑफ द पोस्ट Sir, Extortion में खुद involved थे। never commented on the corruption of Mr. Arvind Kejriwal. She always takes No. duplicate stands and she has lost credibility in the media also. So but there they is say no she is being question- propped up by Devendra Fadnavis Sir, she is no. very close to Mr. Fadnavis that's what they say Sir, basically, Devendra ji is a very sensitive leader. Yes, Even if I any agree with citizen you. Takes up, even if any citizen takes an issue, leave apart Anjali Damania, he will take notice of that. So ऐसा कोई नहीं कि अंजलि दमानिया करके नोटिस लिया. His जब clean आप sheet राजीव to जी Mr. को या Munde has प्रदीप not को gone well. उसको It talks सब about नहीं question seriously marks on the लेते हैं. credibility. Every common citizen of Maharashtra. And even Pune, sir, So ऐसा है कि सर पुणे का दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल Sir, वहां पर inquiry has सर been rightfully done. speaking the hospital should have lost its license it should have been given to somebody else और कितने रिपोर्ट रुकेंगे बकरे साहब 5 रिपोर्ट तो आ गए सर प्रदीप जी आप देखिए देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग पनिशमेंट आल्सो this process is a punishment. और कोर्ट में आप कल जाएंगे कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया राजीव जी, उसका compensation आपने सुना, 5 लाख अल्टीमेटली रुपए सर दोनों बच्चियों एक्शन इज को। बीइंग टेकन द गिल्टी डॉक्टर्स आर बीइंग ब्रॉट टू बुक देयर इज अ I can only say one thing, sir. Very frankly, Mr. Bakre, I have been a great admirer of Mr. Devendra Fadnavis. फडणवीस साहब जैसा ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा. Let's be very clear. He is obviously he has to balance a few things. I understand. I hope all the guilty will be punished and punished properly. I hope he just won't stop. I hope so. भरत सोनी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे. Please go ahead. मैं ये बोल रहा था कि एक बीजेपी के एमएलए के पीए की वाइफ है वो जी और उसकी वाइफ तो बेचारी एक्सपायर हो गई सर. जो लड़कियां हो बेटियां होती है बेटियों को माँ की जरूरत बहुत होती है जी फादर से ज्यादा माँ की जरूरत ज्यादा होती है बेटियों को.
दुरुस्त। और उन 2 बेटियों को कितने का मुआवजा मिला सर? 5-5 लाख रुपए का। वो बेचारी उस 5 लाख रुपए में 2 बच्चियां अभी तक मां नहीं बोल सकती, अभी वो जस्ट जन्मी है। वो 5 लाख को उनका क्या म्यूचुअल फंड में डालेंगे या किस में डालेंगे और कैसे चलेगा उनका पूरा है? और वो बीजेपी एमएलए भी पलटी खा गए अभी वो, है ना। सर वो मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। सर आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर? Sir, rightfully that hospital should have been taken to task. Very frankly speaking, let's be very clear. We are all one over here. Bakre Sahab, I don't know. I find him to be very admirable in practically everything else. The way Dinanath Mangeshkar Hospital behaved, irrespective of whether it was the doctor concerned or whoever was concerned, that was criminal. What happened over there was nothing short of criminal. What happened to that lady? अरे यार 10 लाख रुपए मांग रहे हैं आप, क्या मतलब है? व्यास जी, She is bleeding. व्यास जी, इंस्टीट्यूट ने 1 रुपए के ऊपर जमीन ली है सर, 1 रुपए के ऊपर जमीन। व्यास जी कुछ बोलना चाहोगे मंगेशकर हॉस्पिटल में कानून? नाम्बियार जी और बजाज जी, मैं इस चर्चा को सुन रहा था और ये जो घटना वहाँ हुई है मंगेशकर अस्पताल में पुणे में, बहुत ही दर्दनाक है और किसी भी आपराधिक घटना के रूप में इसको देखा जा सकता है। और जो कोई भी दोषी है कानून से बचेंगे नहीं, कानून उनके ऊपर अपना हाथ जरूर ले जाएगा और कड़ी से कड़ी जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सजा है इस तरह के अपराध के लिए उनको दी जाएगी। इसको हम आश्वासन हमारे शासन और प्रशासन के माध्यम से वो बिल्कुल जो कुछ कोई समर्थन नहीं दे रहा न दे सकता है। व्यास जी और बागरे साहब और भरत सोनी साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सर, देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में, मैं रिमाइंड करा दूं, बागरे साहब शायद भूल गए, 2014 से 2018 में, अब मुझे ईयर याद नहीं है, मिस्टर फडणवीस had come out with a standard operating procedure for all hospitals across महाराष्ट्र, प्राइवेट और पब्लिक, के कैजुअलिटी को पहले ट्रीट कीजिए। कोई भी कैजुअलिटी अगर आपके दरवाजे पे आती है उसको पहले ट्रीट कीजिए, बिलिंग वगैरह बाद में होती रहेगी। सो इन इफेक्ट दिस हॉस्पिटल हैज डिसोबेड मिस्टर फडणवीस ओन ऑर्डर्स। व्यास जी, हॉस्पिटल इज फेसिंग द म्यूजिक बिकॉज एक इनोसेंट लाइफ जो है वो, मतलब इससे तो अनफॉर्चुनेट कोई घटना नहीं हो सकती कि आई एग्री विद यू सर, इज गेटिंग मतलब वो नहीं रही और बच्चे आए सर। इससे तो मतलब राजनीति क्या, ये तो सब एक आम इंसान की बात है सर। ये राजनीति तो 2 मिनट के लिए सब बाजू में रख दीजिए। जो भी इसके लिए दोषी है, जो भी दोषी है, उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए सर, मैं उससे एग्री करता हूँ। और अगर इस प्रोसेस में हॉस्पिटल का भी लाइसेंस कैंसिल करना पड़े तो वो भी सरकार करेगी अगर जरूरत है सर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ inhuman treatment a person can get. और instead of cancelling the license, just change the management के लिए बोला गया और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली। This is not acceptable. कहने का मतलब ये हुआ, he has clearly said that. जी बिल्कुल, immediate statement इशू करके वहां पर उनसे जो उनके परिवार से भी मिले हैं, और देवेंद्र जी एक सेंसिटिव लीडर है और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उस पर एक्शन ली जाएगी। सर मेरा सजेशन सिर्फ एक है, हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल मत कीजिए, जो मैनेजमेंट है उसको बदलिए, उनको रवाना कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। बट इन एनी इवेंट जेंटलमैन, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू ऑल 3 ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर बागरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। व्यास जी, a great mind, he speaks only whatever he needs to speak, not a word here or not a word there. And Bharat Soni Sahab is a very dear friend of ours. Thank you so much. लेकिन जाने के पहले, gentlemen, जाने के पहले भरत सोनी साहब, congratulations to you too. The Congress seems to be reviving itself. जिस तरीके से कांग्रेस ने डेमोन्स्ट्रेशन करी पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में, this is the first time I am seeing the Congress so energized. So congratulations to you. Vyas ji is measured. Bakre Sahab is the party line. He doesn't move off the party line. And Soni Sahab थोड़ा इधर उधर चलते। Sir, Soni Sahab is an intellectual. और Soni Sahab has the freedom within the Congress party to move wherever he wants. But in any event, Bharat Soni Sahab, finally I think the Congress is waking up. However, chalte, just one small thing. Don't you think you should also appreciate all the good things that Mr. Modi has done? Like bringing back the Havur Rana, getting 39 new Rafale aircraft, marine aircraft for the Navy, and so on and so forth. Sir, अच्छा होगा अगर कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो इन सब चीज़ों को भी अप्रिशिएट करें। जैसे एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा जी को अप्रिशिएट करते थे, और तो और छोड़िए राजीव गांधी जी को भी अप्रिशिएट करते थे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज़ बाकरे साहब वो लेके फाइल लेके घूम रहे हैं अभी।
It's already out. Uniform civil code is going to come. Right, gentlemen, thank you very much. Great pleasure talking to all of you. Namaskar. Jai Hind. जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। हर हर जय भवानी, महादेव, जय हर हर शिवाजी। महादेव। Well, that was nice. In the end, we didn't have any too many conflicts. Yes. There, nobody shouted over each other, nobody screamed, nobody did anything, and poor Bharat Soni Sahab was kind of isolated. He had two, one from the Shiv Sena, one from the BJP, talking at him. But all the same, he held his own just a little bit. लेकिन भरत सोनी साहब का तो वो स्टाइल है, मुस्कुराते हुए एक एक चीज बोल ही देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। But as far as what has happened in Kashmir, I think it should not be forgiven. It should be taken very, very seriously, and there should be retaliation. The whole country wants retaliation, and we want retaliation across the border. We want retaliation there. उधर जाकर के जहां से इन लोगों को भेजा गया, वहां पर जाकर के कुछ सबक सिखाना पड़ेगा इन सब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। Exactly. होना ही चाहिए। ये And the people terrorists, wait. just killing of these terrorists won't do. इनको तो आप मार ही देंगे। जंगल पे जाके छुप गए हो, कहाँ तक छुपोगे? जैसे वो कहते हैं ना, क्या है वो बकरे की माँ जो है कब तक खैर बनाएगी? पाकिस्तान का भी वही हाल है। बकरे की माँ यानी आतंकवादियों की माँ जो पाकिस्तान है, वो कब तक खैर बनाएगी? एक दिन आपका भी नंबर आएगा, याद रख लीजिए। Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर दें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वो घंटी भी बज गई है बड़ी जोर से। The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation now. Please do subscribe to the channel. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow यहीं पर इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।